शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। पहला सलाम देना है। गुजरे सारा दिन आपकी खुशियों में आपकी सुबह को खूबसूरत सा नाम देना है। Please all of you sit down. A very warm and cheerful good morning to all of you. Today I, Garima, and I, Pinky, as the host, are here to conduct today's morning assembly, and we both wholehearted welcomes to all the parents and guardians, and especially our chief guest, Captain Deeparam and Mr. Ravindra Kumar Lambardar from Jhuppa, present here with us today in this parent-teachers meeting, PTM. Good communication between parents and teachers is essential for the success of our children. The topic of our today's assembly is exam. We have chosen this topic as we all have just passed the exams and had felt that anxiety. In exam days, we forgot our all happiness and have taken a burden of stress. But the reality is that from this stress becomes strength of our success, from which we succeed in our life. Not observation of a duty, but literally itself is the pledge that assures fidelity. Let's take an oath with Amit. So please all of you stand up.
Take flag position. India is my country, and all Indians are my brother and sister. I love my country, and I am proud of its rich and wide heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders. I shall treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity, along lies my happiness. Jai Hind. Please get sit down. Every morning brings us new thought, new words, new strength, and endless possibilities. So, to enlighten us and brighten our morning, here I invite Anshu for thought of the day. Good morning. Today's thought is just believe in yourself even if you don't pretend that you do, and at some point you will. I repeat it again. Just believe in yourself even if you don't pretend that you do, and at some point you will. Thank you. As like exams are irrelevant without students, thoughts are also not meaningful without its meaning. So for meaning of thought, I invite Amit. Good morning. Meaning of the thought is you never will be the person you can be if pressure, tension and discipline are taken out of your life. I repeat it again. You never will be the person you can be if pressure, tension and discipline are taken out of your life. Thank you. चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में जीरो आया है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में जीरो आया है। हम तो यूं ही चल देते थे बिना मुंह धोए, और दोस्त कहते थे रात भर पढ़कर आया है। Be still when you have nothing to say. When genius passions moves you, say what you have to get to say and say it hot. To know more about today's topic, I would like to invite Dimple for a speech. Respected principal, parents, teachers and my dear friends, a wonderful morning to all of you. Today on this special occasion, I would like to speak some words on topic examination. Examination give us the chance to test our knowledge and understand how much we have learned. They are an essential part of our life. Exam determines students' academic process and allow them to move from one grade to another. They are graded by teachers in just a fair manner. The preparation for any examination is almost as important as the examination itself. The preparation is what determines how much students score in their exam. Students work hard and study for days and sometimes even months to score good marks. At last, I have to remind you one more time what exams are for. Exams are here to test us from time to time and not to provide us some fancy and deluded notion of our capabilities. Because life is too short to stress, children must be brought under kind light of aware teachers who are developing the child in all respects rather than only in the domain of some exam. Thank you and have a nice day. निकले जो चीज दिल से सबको न्यारी लगती है, निकले जो चीज दिल से सबको न्यारी लगती है, और जो बात कही जाए कविता के माध्यम से सबको प्यारी लगती है। Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. Now I would like to invite Khushbu for a beautiful poem. शुभ प्रभात। मैं खुशबू आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फिजिक्स की दुनिया में कदम ही रखा था हमने। टीचर ने कहा टेंशन मत लो, और फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में टेंशन के क्वेश्चन देकर चले गए। गैलीलियो को टेलीस्कोप मिला, यूनिवर्स देखना आसान हो गया, पर किसी ने ये नहीं सोचा उसका इक्वेशन पढ़ना कितना कठिन हो गया। इतने इक्वेशंस और उन इक्वेशंस के टेंशन, कैसे पढ़े, क्या करूँ, या फर्स्ट लॉ के न्यूटन लगाकर बुक्स को रेस्ट में ही छोड़ दूँ। थैंक यू। Let's take a break from culture program and move towards the culture. Let's take break from this assembly and move toward the culture programs. नृत्य मेरी अभिलाषा है, नृत्य ही मेरी भाषा है, नृत्य मेरे लिए सम्मान है, नृत्य ही मेरी पहचान है।
Life is beautiful, but soul is always shine. Desire is life's passion, but kindness is soul's pleasure. Let's your soul shine with dance. From first I would like to invite a group Chidiyan Kalaiyan. You're my darling angel, baby. White lion drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. You're my darling angel, baby. White lion drives me crazy. Shiny eyes, glitter, glitter, glittery. You're the light that makes me go hazy. Makes me go hazy. ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮੈਂ ਖਾਗਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਆ ਜੋੜਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੜਦੀ ਫਿਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤੰਗ ਤੰਗ ਜੋੜਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੜਦੀ ਫਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਲਾਬੀ ਚੁੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਚੂੜੀ ਪਾ ਦੇ Let's take a break from culture program and move towards the prize distribution of art poster making competition, for which I request our Vice Principal, Mr. Anil Mudgal sir, and our today's chief guest to come upon the stage and give prizes to the students. Captain Deeparam ji and Mr. Raghuveer Singh Lambadar from Jupa. Ravindra Kumar. First we start from class 3rd to 5th. Jatin from class 5th white has first position. Please clap for him. Bhumika from class 5th orange, she has got first position. Sumit from class 5th white had got second position. Please come up on the stage. Varsha from class 4th orange has got second position. Anushka from class 5th orange has got third position. Jannat from class 4th white, she also has got third position. Please clap for them.
like to call students from class 6 to 8. Hanshika from class 7th orange, she has got first position. Raksha from class 8th white has got first position. Sheetal Jaipal and Samara had secured second position. Please come on stage. Sheetal from class 7th and Samira from class 8th. Ritika from class 8th white has got third position. Mannat from class 8th white has also got third position. Please come up on the stage. Now it's turn from class 9th to 10th. Garima Jindal, Anshu Rathod and Mansi had got first position from class 10th white. Khushbu from class 10th white has secured second position. Uma from class 10th white and Anjali from 10th orange has secured third position. Amit from class 10th white has also secured third position. Thank you, sir. Now I request our sir and today's chief guest to have a seat. People together, whether it is seen as a fun celebration or a beautiful art that even little children can appreciate. Dancing is the rhythm of the soul expressed in movement, beauty, art, and creativity. All kids, when they go to school, are pretty good artists and dancers, singers, and poets. All that gets buried basically through being educated or brainwashed. Now I would like to invite a group of Makhna for their performance. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुम लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई
तू देख तो अज भी दिल पर कुड़िए तीर सा एक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई खूना इमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना Music, STK. मैं दिन भर सोच में डूबूं मेरा दिल चाहूं न सोऊं तूने मेरे सपनों में ओ सजना मैंने पायल चमकाई तो आजा तू हर जाए मैंने पायल चमकाई तो आजा तू हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना जाना पर तरसा ओ सजना आ जाना पर तरसा आँखों में कचरा बाल में कचरा बिंदिया जो लगाई रे देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए चले जब ये फरमाई बजे दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का ओ सजना मैंने थोड़ी है कनकाई तो आजा तू हर जाए मैंने थोड़ी है कनकाई तो आजा तू हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना आ जाना पर तरसा
ऑफ यू। आप लोग खुश हो? मैं मेरा आता हूँ। मैं रिटायर्ड कैप्टन इंडियन आर्मी AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर दीपाराम। मैं रिटायर्ड फ्रॉम हिसार। मेरी सर्विस कंप्लीट 20 ईयर। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में मेहनत करो। ये कंपटीशन का ज़माना है। मैं मेरी जीवनी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पूरी मेरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से है। आप लोगों की एजुकेशन एक प्राइवेट स्कूल अच्छी संस्था से है। जब हम पढ़ते थे हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये माँ बाप से मांगते थे और वो मिलता नहीं था। झगड़ा करते थे बस में। या BRJD पब्लिक स्कूल की बस जाती थी, उसका ड्राइवर जगदीश हुआ करता था गालड़ का, हम मारपीट करते थे। आज का युग बच्चे घर से आते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी 4 व्हीलर लेके आते हैं। माँ बाप आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है। आप पढ़िए, कंपटीशन का ज़माना है। ये नहीं है कि आया खेलो, एजुकेशन भी आपके लिए है, फिजिकल भी आपके लिए है। आप शारीरिक मेहनत करिए। इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत करो। ये कल्चर प्रोग्राम आप बच्चों का बहुत ही बढ़िया रहा, अव्वल दर्जे का रहा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गरिमा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सम्मानित मंच, ये बड़ा अभाग्य है जो आज हमारे बीच में कर्नल साहब, कैप्टन साहब देवराम जी, इनसे मेरी मुलाकात हिसार में हुई थी। और ये आप इसी गांव से हैं, बड़ी नांगल से। बड़ी नांगल गांव से किस तरीके से एक व्यक्ति संघर्ष करता हुआ और किस मुकाम तक पहुंचता है, ये आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। व्यक्ति यदि अपने मन में ठान ले, निश्चय कर ले, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और ये सत्यता है कि जब आज से 35-40 साल पहले की हम बात करते हैं तो पैसों का इतना अभाव था समाज में। गांव में बामुश्किल, बड़ी मुश्किल से कोई 2-4 घर पक्के मिलते थे, बाकी कच्चे मकान हुआ करते थे। मई और जून का महीना ऐसा होता था जब गांव में कोई आग नहीं लगते, क्योंकि कच्चे छप्पर होते थे, खाना बाहर बनता था। एक झोंपड़े में आग लगती थी, पूरा गांव सुहा हो जाया करता था। वो भी एक ज़माना था। और उस समय किस तरीके से बच्चे मेहनत करते थे, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर तक पैदल जा कर के वो स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे और बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचते थे। आज का पेरेंट्स बहुत जागरूक है, सजग है अपने बच्चों के लिए। आपकी अच्छी स्टडी हो, इसके लिए आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो सब सुविधाएं, फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चाहे एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जो कुछ भी आपको उपलब्ध है उसको हम भुलाएं और निश्चय कर लें कि हमें ज़िंदगी में इस टारगेट तक पहुंचना है। तो अगर आप उस निश्चितता के साथ में मेहनत करते हुए अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइम टेबल अगर बना करके अगर आप चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको उस मुकाम से रोक सके। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स का एक दबाव बनता है, स्पेशली जब 9th और 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं कि आपको 11th में साइंस में जाना है, मैथ लेना है, बायोलॉजी लेनी है, कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, और बच्चे की इच्छा शक्ति नहीं होती या उसमें उतना सामर्थ्य नहीं होता है। उस समय हमें देखने को मिलता है कि वो बच्चे जाकर के फिर 12th जैसे तैसे करके पास कर तो लेते हैं, अंदर से प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह नष्ट हो जाता है और उसका परिणाम भी सुखद नहीं मिलता है। तो आज पेरेंट्स से मेरे बीच में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने बच्चों को समझना है, जानना है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या चाहता है। उसके हिसाब से अगर हम बच्चे को पुश करेंगे, बच्चे को अगर मोटिवेट करेंगे, बच्चे को हम उस फील्ड में अगर हम डालेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसी घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते। सामर्थ्य जितना है, जितनी कैपेसिटी एक गुब्बारा है उसमें अगर हम ज़्यादा हवा भरेंगे वो फट जाएगा। उसकी कैपेसिटी उतना ही अगर हम उसमें हवा भरेंगे तो वो
फूल करके और वो एक सुंदर रूप में बन जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा उसमें प्रेशर डालते हैं तो वो फट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हर व्यक्ति की, हर एक बालक की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हमें समझना है। 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं या 2 बहन हैं, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है। इस चीज़ को हमें समझ करके काउंसलिंग करनी है। स्पेशली जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं अभी फ़िलहाल ही में, उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और वो आप स्कूल में आकर के डिस्कस करें अपने बच्चों के बारे में। या 9th और 10th क्लास के जो इस समय जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अगस्त में या हम जुलाई के लास्ट में एक मीटिंग करेंगे, उसमें आपको आना है। आज जितनी उपस्थिति पेरेंट्स की होनी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि सावन का महीना है और खेतों में काम काफ़ी है। हमें समझना है इस चीज़ को भी, क्योंकि बिना फसल के, बिना खेती अगर हम नहीं करेंगे तो आमदनी नहीं होगी, और आमदनी नहीं होगी तो फिर दिनचर्या जो हमारी वो चलना बहुत मुश्किल है। खैर, हर काम हमें देखना है, लेकिन एक दिन हम निकाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए। साल में मुश्किल से 6 या 7 PTM होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर मीटिंग में हम आएँ, सुने, समझें हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर उससे क्या अपेक्षा करते हैं, वो हमें जानना है, समझना है, और उसके हिसाब से एक माहौल हमें उस बच्चे को प्रोवाइड करवाना है। अभी यहाँ गर्मी है, PTM ऑडिटोरियम में हम करेंगे। तो आज का जो कल्चर प्रोग्राम था उसमें ज्योति सिंह और ज्योति मैम, मैं दोनों को स्टेज पे लाना चाहूँगा प्लीज़। न्यू स्टाफ है और इन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ज्योति मैम रोहतक से हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहतक से हूँ और सर ने मुझे इस लायक समझा इंटरव्यू में किया कि मैं यहाँ अपना कुछ योगदान दे सकूँ, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलकर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ, और BRJD ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है खुद को साबित करने की। बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और पेरेंट्स को प्राउड होगा कि आपके बच्चे एक दिन बहुत अच्छे करियर लेवल पे होंगे और कुछ ना कुछ हमारी तरह और हमसे भी ज़्यादा बन के दिखाएंगे। सो थैंक यू सर एंड एवरीवन टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू मैम, प्लीज़। अभी जो रिजल्ट है, क्लास टीचर अपने अपनी क्लास को क्लासरूम में लेके जाएंगे, वहीं रिजल्ट जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स आए वहाँ से क्लासरूम से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑडिटोरियम में हम PTM करेंगे। क्लास टीचर अपने क्लास में ही बच्चों को रखेंगे, बच्चे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। PTM में केवल पेरेंट्स वहाँ रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मजा नहीं आया यार, आप लोगों की आवाज बड़ी धीमी। ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया सुबह सुबह? कहाँ आवाज ही नहीं आ रही उस साइड से, तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अरे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया? उस साइड से नहीं आ रही, इसका लग रहा है लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। 9, 10, 11, 12 मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। जोर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है? जोश जुनून जबरदस्त होना चाहिए। पाकिस्तान तो सुनना चाहिए, हाँ भारत माता की जय होती है। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? फौजी आदमी बहुत जोश होता है। बूढ़ा फौजी है ना, वो दहाड़ता है ना, पूरे पाकिस्तान में आवाज आती है, अरे यार आज एक बूढ़ा फौजी बोला यार भैंसो दहाड़ रहा है। और आप लोगों की साइड से कोई आवाज ही नहीं आ रही यार, बिल्कुल भी। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारोगे? बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जब तक इस साइड से आवाज नहीं आएगी, भारत माता की जय नहीं पुकारी जाएगी। अरे जोर से बोलोगे? हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर।